ऐसे धड़कन सोचो लेता नहीं यार बेटा सबका फोटो इन्हें जिताने की वो लेता नहीं यार बेटा सबका फोटो इसने जिताने की I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be.
वेंगर खाते काम शहर जरा साफ मिले रखन के आड़ी खाप मिले आपके बेटे, आपके भाई इस गनौर के अनबान शान देवेंद्र कादन जी आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाएं। एक बार मेरा सभी से निवेदन है जो मंच के सामने हमारे सम्मानित है, एक बार बैठ जाएं। हमारी मातृ शक्ति बच्चों से मेरा निवेदन है बैठ जाए और मंच से जो साथी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं। एक बार ये साथी थोड़ी सी मंच पर भी व्यवस्था बनाएं और सामने जो भी हमारे साथी मंच के सामने खड़े हैं इन साथियों से अनुरोध करता हूं कि साइड में मंच से थोड़ा साइड हो जाएं। हमारे पितातुल्लाह बुजुर्ग, हमारी माता शक्ति पीछे बैठी है, उनको दिक्कत ना आए। और मंच पे भी मेरा साथियों से निवेदन है, कुछ सम्मानित हमारे पीछे बैठे हैं, एक बार मंच की भी व्यवस्था बनाए। साथियों, युवा साथियों, हाथ जोड़कर निवेदन है मंच की व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। आप सबका कार्यक्रम आप सबने आशीर्वाद देने के लिए अपने भाई बेटे को यहाँ पर बुलाएं। आपके बेटे, आपके भाई आपके बीच में आए हैं, व्यवस्था बना के रखें। ये पीछे भाई एक बार मीडिया कर्मियों से भी मेरा निवेदन है, एक बार थोड़ा सा व्यवस्था बनने दें। बैठ जाए युवा साथी, एक बार बैठ जाए, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। ये भी थोड़े साइड में हो जाए, आपसे पीछे कुर्सियों में बैठे ये युवा साथी जो इधर खड़े हैं पीछे हो जाओ भाई। कुलदीप भाई पीछे कर दो, इस साइड से भी पीछे कर दो।
पीछे हो जाओ भाई, सभी युवा साथियों से निवेदन है, मंच पे भी व्यवस्था बनाएं और जितने भी सम्मानित हमारे मंच पे वो भी बैठ जाए, सभी सम्मानित एक बार बैठ जाए। जो युवा साथी सामने खड़े हैं, ये कोने में सीटी के पास खड़े हैं भाई, कुछ युवा साथी ये सामने, भाई आपसे भी अनुरोध है एक बार थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं। हमारी मातृशक्ति बैठी है, प्यारे बच्चे नीचे बैठे हैं, इनको भी समस्या ना आए तो मंच के आगे की जगह को थोड़ी सी खाली कर दो, साइडों में खड़े हो जाओ। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे हैं सामने, तो किसी के आगे ना खड़े हो, थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखो। हमें कुछ सम्मानित सरपंच साहब अतर सिंह जी हमारे सम्मानित हमारे बीच में हैं। इन्होंने अपने बेटे को पगड़ी से सम्मानित किया, उनको मान सम्मान दिया। हम सरपंच साहब का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और पंडित राम सिंह जी ने, पंडित हवा सिंह जी ने, चौधरी प्रेम सिंह जी, सूरजबान जोगी जी, रविदास समाज से और लक्ष्मी जी रविदास समाज से आते हैं, धर्मपाल जी, कैप्टन सीताराम जी और कुलदीप सिन्हा प्रेम सिंह जी और चौधरी ओम प्रकाश थानेदार जी और रामकुमार प्रजापत जी। ये ढोल वाले साथी भी सम्मानित करना चाहते हैं। ये जितने भी सम्मानितों ने अपने बेटे अपने भाई को इतना प्यार मान सम्मान दिया, जो भी सम्मानित मंच पे बैठे हैं, सरपंच साहब और सभी का जिनका भी मैंने नाम लिया, इन सभी लोग पगड़ी के साथ अपने भाई अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया। और ये पगड़ी का जो मान सम्मान है, हरियाणा की पवित्र भूमि पर सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है। ये गांव की सरदारी यहाँ पर बैठी है, मातृशक्ति बैठे, युवा साथी सभी यहाँ पे हैं, मंच पे गांव की सरदारी बैठी है। इन सभी ने अब की बार ये सोच लिया कि सरदारी की पगड़ी है, चौधरी की पगड़ी अब की बार नेता के सिर पे नहीं रखनी, अपने बेटे के सिर पे इन्होंने ये पगड़ी रखी है और ये बेटा भी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा। अब अभी हमारे बीच में कुछ हमारे सम्मानित एक बार ये प्यारे बच्चों से मेरा निवेदन है, शोर कम कर लें भाई। ये हमारे युवा साथी भी शोर कर रहे हैं छोटे बच्चों की तरह। युवा साथी मेरी बात को सुने एक बार, थोड़ा सा पेशेंस बना लो भाई, थोड़ा सा प्यारे बच्चे चुप हो जाओ बेटा, एक बार चुप। वो जैसे नर्सरी की मैडम बोलती है ना, माउथ ऑन फिंगर, एक बार उंगली रखो अपने। ये हमारे युवा साथी भी बड़े हैं, नर्सरी वाले बच्चों की तरह शोर कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में कुलदीप सिन्हा प्रेम सिंह जी हमारे सम्मानित हमारे बीच में मौजूद है। वो 5100 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और साथ में इन्होंने लड्डुओं से तोला है, 5100 की माला और लड्डुओं से तोला है। हम कुलदीप सिन्हा प्रेम सिंह जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पंडित ओम प्रकाश जी हमारे सम्मानित हमारे बीच में मौजूद हैं। 3100 की माला के साथ वो देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे, पंडित ओम प्रकाश जी। और साथ में पंडित जगबीर जी आरटीओ, पंडित जगबीर जी हमारे सम्मानित आरटीओ हमारे बीच में मौजूद हैं। वो भी 2100 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का अपने बेटे अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और करसन जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी 2100 की माला के साथ इनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। पंडित ओम प्रकाश जी ने भी 3100 की माला के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम अपने सम्मानित पंडित ओम प्रकाश जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और पंडित जगबीर जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इन्होंने 2100 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। हम इनका भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। करसन जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी 2100 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और साथ में मोनू स्नोब जय भगवान जी 5100 की माला के साथ इन्होंने अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाया। हम मोनू स्नोब जय भगवान जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, जो उन्होंने ताकत ऊर्जा देने का काम किया। हमारे एक युवा साथी हैं अजय हमारे युवा साथी, उनके ताऊ हैं आनंद जी भी 11000 की माला के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम आनंद जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जिन भी हमारे सम्मानितों ने फूल मालाओं के साथ पगड़ी के साथ अपने भाई बेटे का जो मान सम्मान बढ़ाया, जो ऊर्जा ताकत देने का काम आपने किया है, ये ऊर्जा ये ताकत
आपके विकास में, आप सबकी सेवा में लगाई जाएगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सबका हौसला बढ़ाएं। अभी हमारे कुछ युवा साथी मौजूद हैं, वो बड़ी माला के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जो भी युवा साथी बड़ी माला के साथ जो मान सम्मान बढ़ाने के लिए मेरे को नाम दे के गए थे, उन साथियों से मैं अनुरोध करता हूं, उन्होंने ऐसे ही बोला था युवा साथी, नाम नहीं थे। जो भी युवा साथी बड़ी माला के साथ मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं वो एक बार मंच पे आ जाएं। आप सभी ने सैया खेड़ा की इस पवित्र भूमि पर, सवा कलाना बोला जाता है सैया खेड़ा, इस पवित्र भूमि पर जो आपके बेटे, आपके भाई देवेंद्र कादयान जी को जो मान सम्मान दिया गया, इसके हम सदा आभारी रहेंगे। ये आपका बेटा, आपका भाई आपका आभारी रहेगा और इस कर्ज को ये आपकी सेवा करके उतारेगा, आपके गांव का विकास करके उतारेगा, आप सभी का मान सम्मान करके उतारेगा। बड़ी माला के साथ जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग सभी सम्मानित हमारे बीच में है, सभी गांव की सरदारी, ये हमारे गांव के युवा साथी जो इतना प्यार समर्थन अपने भाई अपने बेटे को दे रहे हैं। अब की बार ये सिद्ध है कि गनौर हल्के की विधानसभा के अंदर सभी गांव ने, इस गनौर की जनता ने ठान लिया, 36 बिरादरी ने ठान लिया है कि अब की बार इस गनौर में भेदभाव की राजनीति खत्म होगी और अब की बार इस गनौर के अंदर नेता नहीं बेटा चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा। जोरदार तालियों के साथ इन सबका हौसला बढ़ाएं, अपने भाई अपने बेटे का हौसला बढ़ाएं, देवेंद्र कादयान जी का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि आपकी ये तालियों की गूंज, आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये मालाओं के साथ जो स्वागत आपने किया, पगड़ी के साथ जो अपने भाई बेटे को मान सम्मान दिया, इसके हम आभारी हैं। ये आपका बेटा, आपका भाई आभारी है। और जो प्यार समर्थन ये उमड़ा जन सैलाब ये बताता है, ये उमड़ा जन सैलाब, ये 36 बिरादरी से आए पिता तुल्य बुजुर्ग, ये मातृ शक्ति सभी बताती है कि अब की बार गनौर बदलेगा। अभी एक बार मैं नारे लगवाऊंगा, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते और मैं सभी से निवेदन करता हूं, एक बार भाई शोर कम कर लें, एक बार थोड़ा सा व्यवस्था बना करके। सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों से भी निवेदन है, ये प्यारे बच्चों से भी निवेदन है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। दोनों हाथ उठाकर आपको पूरे जोश के साथ नारे लगाने हैं और ये नारों की गूंज पूरे गनौर विधानसभा क्षेत्र में जानी चाहिए। सभी को पता लग जाना चाहिए कि इस गनौर की जनता ने ठान लिया कि अब की बार इस गनौर में जीत सच्चाई की होगी। भारत माता की, और जोश दिखाइए। अब की बार आवाज चंडीगढ़ तक जानी चाहिए, पहले से पता लग जाना चाहिए कि अब की बार इस चंडीगढ़ विधानसभा में बेटा आएगा, आपका बेटा आएगा। भारत माता की। अभी ऐसा ही जोश आपको दिखाना है अपने भाई अपने बेटे को। मैं आपको बोलूंगा देवेंद्र कादयान आप आगे बढ़ो, दोनों हाथ उठाकर दिल से आवाज निकालनी है और बोलना है हम आपके साथ हैं। और आपके भाई आपके बेटे को महसूस होने आना चाहिए कि पिता तुल्य बुजुर्ग, ये मातृ शक्ति युवा साथी, ये पूरा गांव सब इनके साथ है। गांव की 36 बिरादरी इस बेटे इस भाई के साथ है। दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश से आवाज लगानी है। देवेंद्र कादयान आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादयान आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। जो प्यार ये मान सम्मान आपने दिखाया काबिले तारीफ है। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित रामफल सैनी जी मौजूद हैं, उनके अपने मन के कुछ विचार हैं, भाव हैं। चेयरमैन रहे हैं गनौर के पूर्व, ये अपने विचार हम सबके बीच में रखना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार इनका भी स्वागत करें। रामफल सैनी जी। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं अपनी मातृ शक्ति के चरणों को नमन करता हूँ और जो मेरे बुजुर्ग यहाँ विराजमान हैं उनको भी मैं तहे दिले प्रणाम करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने मतलब जो है ना इन छोटे छोटे जो ये फूल हमारे सैया खेड़े के मतलब जो है ना बगिया में खिले हुए हैं, इनसे करना चाहता हूँ। और जो मेरे बुजुर्ग और पूजनीय मंच पर आसीन हैं उन सब को भी मैं नमन करता हूँ। मेरे दोस्तों,
मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, इलेक्शन तो आपने भाई बतेरे देखे हैं, बतेरे हमने भी लड़े भी, आपने लड़ाए भी, लेकिन ये इलेक्शन जो है ये आम इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन आपके वजूद और वकार की लड़ाई है। अगर अपना वजूद और वकार आपने बचाना है तो भाई देवेंद्र कादियान को 1 तारीख को वोट डालकर जिताना होगा, ताकि आपके इन बच्चों का, हमारे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उज्जवल रहे। और भाई एक बात और मैं कहना चाहूँगा, घना लंबा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि समय का बड़ा अभाव, काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। और कह रहे हैं होनहार वीरवान के हो चीकने पात, और हमारी देसी भाषा में कह दिया रहे हैं, अब वह पूछ के पादा पालने में बिछाने जा रहे। तो दोस्तों, यू वो पूत है जिसके पैर आपने पिछाड़ लिए, क्योंकि इसने करके दिखाया है। क्यों किया है, क्यों इसे करना चाहिए था, इसके दिल की भावना ये थी क्योंकि इसने गरीबी को और कमी को मतलब जो है ना बहुत नजदीक से इसने देखा है, इसका सामना हुआ है उस गरीबी से। तो मेरे भाई वो कहना, जिसके पैर ना फटी बिवाई सो का जाने पीर पराई, इसके पैर में बिवाई फटी है, इसको गरीबी का एहसास है, इसको दुख तकलीफ का एहसास है कि एक आम गरीब आदमी को क्या मतलब जो है ना तकलीफ होती है, क्या होती है, क्योंकि उनसे ये गुजरा है, इनका एक्सपीरियंस है। और मेरे दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, जब इसने इसको एहसास हुआ, इन्हें देखा, उस रास्ते से गुजरा, तो इसीलिए मेरे भाई के दिमाग में और मन में ये भावना पैदा हुई कि इसने बगैर किसी पद के, बगैर किसी सरकारी सहायता के अपनी मेहनत की कमाई करके उसमें से आम बच्चों को, आम जनता के लिए मतलब जो है इसने करके दिखाना शुरू किया। तो आज जो ये देख रहे हैं ना, अब बगैर कुछ किसी पद के बगैर कुछ बने, इसकी ये भावना है। तो मेरे दोस्तों, आप अंदाजा लगा लो कि जब इनके हाथ में सरकारी पावर होगी ना, तो ये तब तुम्हारे लिए क्या करेंगे, यानी कोल आने का काम रखेंगे नहीं। मैं एक सबसे जो गुजारिश करना चाहूंगा, भाई 1 तारीख में अपना इलेक्शन समझ लियो, कोई भी वोट रहने ना पाए, अब जो पल्ले बगैर रह जाए। और उस दिन सब आज से लेकर जिस दिन वोट पड़ा उस दिन तक मेरी हर माता, हर भाई, हर मेरा बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी अपने आप को, खुद को देवेंद्र का दान समझकर इस इलेक्शन को लगा दो और इस बेटे ने चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंचा दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब। अभी इस समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं देवेंद्र कादियान जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार हम सबके बीच में रखें। जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं। आप लोग बहुत देर से बैठे और अभी थोड़ा जोश लाने के लिए जयकारे लगाने हैं और ये देखना है मातृशक्ति में ज्यादा ताकत है या एक सम्मानित हमारे जो और बैठे हैं। मैं बोलूंगा जय दादा खेड़ेगी, आपने जयकारा लगाना है। जय दादा खेड़ेगी। भाई हमारी माता बहने आ गए हैं, इधर एक ट्राई और ले लो। जय दादा खेड़ेगी। ये भी यही आ गए। जय बोल दो हमारी मातृशक्ति। सबसे पहले हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, माताएं इतनी संख्या में खराब मौसम में, काम के टाइम, रोटियों का टाइम था, दाल डोकरी के टाइम से बैठी हैं, 2-2.5 घंटा हो गए। अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, उसके सिर पे हाथ रखने के लिए कितनी देर से इंतजार कर रही थी।
ऐसी अपनी मातृशक्ति को, इन बहनों को सिर झुका के नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और युवा साथी और ये बुजुर्ग वहां से रजवाए पड़ते, ट्रैक्टर पे, मोटरसाइकिल पे, कंधों पे, फूलों की बारिश से, नोटों की बारिश से, हर वो सम्मान, हर वो ताकत अपने भाई को, अपने बेटे को, इस सैया खेड़ा के मेरे नौजवान साथी, मेरे पिता तुल बुजुर्गों, आज जो ये मेरे सिर पे जिम्मेवारी की पगड़ी आपने बांधी है, जो ये सम्मान दिया है, इस सम्मान को जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस रहेगा इस शरीर में, जब तक याद रखूंगा, इसका एहसान उतारूंगा। मेरे से पहले ये नौजवान साथी है जिसके हाथ में माइक, बहुत सारी चीजें देवा संस्था की मेरे बारे में, और जो ये टीवी चल रहा है, एलईडी चल रही है, इसमें बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारा ग्वांड है, सवा गांव जो है वो मेरा ग्वांड है, और कोई भी चीज मेरी ना आपसे छुपी है, ना बुजुर्गों से छुपी है, ना इन नौजवानों से। पिछले 8.5 साल से आपके बीच में, चाहे संस्था के माध्यम से हो, चाहे कोई और माध्यम रहा हो, आपने मेरे जो भाव हैं, जो मेरे विचार हैं, जो मेरी भावना है, वो हर जन जन तक पहुंची। कैसी भावना, कैसे विचार? जब ये बुजुर्ग अपने हुक्के पे चर्चा करते हैं, जब ये हमारे काका ताऊ दादा बतलावा है कि भाई छोरा बहुत कमल है, अच्छे विचार आगा है, हमारा गुआंडी है, तो मेरी जो मेहनत है, जो खबात है, जो मैंने कार्य, जो मैंने अच्छे कार्य, गरीबों की मदद की बात हो, इन बच्चों को हर साल जो अच्छे नंबर लेके आते हैं उनको इनाम बांटने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात हो, और बहुत सारे काम ऐसे जो आपके भाई ने, आपके बेटे ने अपने गन्नौर के लिए, विशेष तौर पर गरीब वर्ग के लिए, नरम वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, तो मुझे लगता है कि मैंने जो शुरुआत की है वो अच्छे के लिए की है, और आशीर्वाद जो आपका मिल रहा है वो मुझे और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, और मदद करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आज जो ये मंच सजा, ये जो मंच सजा है, ये आने वाली 1 अक्टूबर को, लगभग 1 महीना और 2-3 दिन बचे, चुनाव का 1 महीना 2-3 दिन बचे हैं। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। हरियाणा में और आपके गन्नौर में आपने अपना प्रतिनिधि चुनना है। आपने अपने गन्नौर का मुखिया सरपंच चुनना है, और यह तय करना है कि अब की बार इस गन्नौर की बागडोर किसान के बेटे, गरीब किसान के बेटे को देनी है, या जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक घरानों से चलती आ रही है उनके हाथों में देनी है, या जो आपके अंदर से, उस भीड़ से निकलकर
जो नौजवान अपनी मेहनत से, अपने पसीने से या इस मंच तक का सफर तय किया हो, उस बेटे को देनी। मेरे हाथ में कुछ सम्मानित हमारे बुजुर्गों के नाम लिखे। मैं सोच रहा था कि इसको पढ़ूंगा, और बहुत सारे ऐसी मूर्तियां खड़ी हैं। यदि वास्तव में यदि नाम सबके लेने हो तो मेरे हिसाब से 4-5 पन्ने सबके लिखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये 10-15 सम्मानित व्यक्तियों के नाम हैं। मैं उनके नाम एक बार मंच से बोलना चाहता हूं। हमारे ताऊ जी, आपके प्रधान जी अतर सिंह जी, साहब सिंह जी, सूबेदार भीम सिंह जी, हमारे अंकल रणदीप सेक्रेटरी जी, राजपाल थानेदार जी, राजकुमार प्रजापति जी, लक्ष्मी सुब्बा, चरण सिंह रविदास समाज से हैं, रामचंद्र प्रेम जी धानक समाज से, राम रोशन राजवीर रामनिवास बैरागी समाज से, जय भगवान जी पूर्व सरपंच, वेदपाल जी, रणवीर थानेदार जी, पंडित राम सिंह जी, हवा सिंह जी, सीताराम जी, रामेर थानेदार जी। न्यू देखो ना रामेर के घड़े में नाम ओम प्रकाश थानेदार जी, काला भाई जो मां सिंह के सुपुत्र हैं, धर्म सिंह जांगड़ा जी, विजेंद्र जांगड़ा जी, और अभी मेरे को आशीर्वाद देके अपना संबोधन किया राहुल सैनी जी, हवा सिंह जी संफेड़ा से, देवेंद्र भाई शेखपुरा से, और बहुत सारे आपके गुवाहाटी सरपंच आए हैं। पिछले प्रोग्राम में भी पहुंचे थे नदी पर माजरा। इन्होंने कहा भाई मारो नाम मत लेना, सवे में जा रहे थे सारे सवे वाला का नाम लेना। तो सारे मेरे सम्मानित सरपंच खड़े हैं यहाँ पर, दाएं और बाएं सब मेरे सम्मानीय हैं। मैं चर्चा कर रहा था आने वाले चुनाव की। ये चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच में नहीं है। यह चुनाव आपके भाई, आपके बेटे, किसान के बेटे और गरीब के बेटे के बीच में, और एक ऐसे नेता के बीच में है जिसके पिताजी 4 बार 5 बार बड़े बड़े पद पे, एमपी, मंत्री, स्वयं भी बहुत बड़े बड़े पद पे, सीएम लेवल के पद पे रह के आया है, जिसने नेता के जन्म दिया है। और आपके बेटे ने एक छोटे से गरीब किसान के घर में, अभी रामपाल सैनी जी बता रहे थे, और मैं क्योंकि मेरा ग्वाड है मैं बताना चाहता हूं, आपके गांव से गन्नौर पढ़ने जाते थे। ये देवेंद्र भाड़ा भाई बेटा है, बस चलती थी, बसों के भी नाम याद है। एक बस का नंबर था 1712, एक का था 1727। उन्नीस सौ 97 की बात है। 97 का मतलब हो गया 24 और 3 27 साल। 10वीं क्लास मोई माजरी स्कूल, 12वीं क्लास सरकारी कन्नौज स्कूल। उसके बाद घर में पैसे नहीं थे, गरीब किसान का बेटा था, तो कोई थोड़े दिन किसानी करी, सब्जी बेचने की बात हो, दूसरी दुकान करनी हो, बहुत सारे छोटे छोटे काम कर बनाया। एक ऐसा नौजवान जिसने गरीब किसान के घर में जन्म लिया, जिसने सरकारी स्कूल में अपनी शिक्षा ली हो,
जिसने बेरोजगारी के लिए धक्के खाए हों, 2 साल तक नौकरी का कागज हाथ में लेके सोनीपत में नेताओं के पीछे धक्के खाए हों, जिसने एक रेहड़ी वाले की क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, एक दुकानदार का क्या दर्द है, एक व्यापारी का क्या दर्द है। मेरे कहने का मतलब एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा बेटा जिसको एहसास है कि एक आम परिवार, गांव में रहने वाला छोटा गरीब किसान, उसका बेटा कैसे पढ़ाई पढ़ता है, कहां से खर्चे आते हैं, कहां से पैसे आते हैं, और जब नौकरी के लिए निकलता है कैसे ठोकरें खानी पड़ती हैं, वो आपके भाई और आपके बेटे ने खा के देखी। ये जो बेटा उठाया 8.5 साल पहले, जब मैंने लिखा नेता नहीं बेटा, मैंने कहा, जब मैंने लिखा था नेता नहीं बेटा, ये 3 वर्ड इसलिए मेरे अंदर आए कि भाई आप बेटों को मौका दो, जिनको अनुभव है, जिन्होंने धक्के खा रखे हैं, जिनको भूख का पता है, जिन्होंने दर्द ठोकर खा के आए हैं, वही यदि प्रतिनिधि बनेंगे तो वो ये जो बेरोजगार हमारे युवा साथी खड़े हैं, जो ये गरीब हमारे भाई बैठे हैं, इनका दर्द, इनकी पीड़ा वही आदमी समझ सकता है जो गरीबी से निकल के आया। आज चाहे देश में देश का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हो, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी की बात हो, और चाहे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की बात हो, ये सारे वो चेहरे हैं, वो व्यक्ति हैं जो आप जैसे गरीब घरों से निकलकर वहां सीकर तक पहुंचे। यहां ये फोटो लगा है मोदी जी का, और जो आखिरी फोटो लगा है ये नौजवान है जसवीर लोधवा। ये हमारे सोनीपत का जिला अध्यक्ष है हमारी पार्टी का, ऐसी समुदाय से आता है, रविदास समाज से। पहली बार रूलिंग पार्टी की सरकार जिसकी चल रही हो, उस पार्टी ने सोनीपत जैसे जिले का अध्यक्ष बनाया है गरीब के बेटे को। ये जो पूरी लाइन है, ये वो चेहरे हैं जो आप जैसे परिवार से निकल के आए हैं। कभी ये मत समझना कि भाई देवेंद्र चुनाव के समय आया था, झूठ बका के चला गया। मोदी जी कहां से आए, योगी जी कहां से आए, इनके पिताजी कौन थे, किस घर में जन्म लिया। यदि मैं आप सबसे पूछूं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री या योगी आदित्यनाथ के पिताजी का नाम बताओ, मोदी जी के पिताजी का नाम बताओ, तो किसी को भी याद नहीं है, क्योंकि वो गरीब आदमी थे। यमुनानगर का 1.5 एकड़ का छोटे किसान का बेटा, सैनी समाज का, माली समाज का, गरीबी से खुद लड़के बूथ लेवल से लेके, ब्लॉक से लेके, जिले के पदाधिकारी से लेके, अपने दम पर मेहनत करके आज हरियाणा का मुख्यमंत्री है। मेहनत करके कहने को तो कह देते हैं नेता, और वो बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के, जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति को बढ़ाया है। पहले उनके दादाजी, फिर उनके पिताजी, फिर वो स्वयं, आगे बच्चे। देखा होगा ना, अभी एमपी के इलेक्शन थे, करनाल में अपने बेटे का हाथ लिए घूम रहे थे, भाई मेरे छोरे की भी वैकेंसी लेके आऊं। जिस बात पे नाराज हो गया था। मेरे कहने का मतलब यह है, जो देश का मिजाज है, प्रदेश का मिजाज है, अब जो ये समय है, ये आपके बेटों का है, आपके भाइयों का है, ये समझने की जरूरत है। जो कांग्रेस का नेता
आपके बीच में आ रहा है, घूम रहा है, उसको 10 साल आपने मौका दिया, और ये पिछले 5 और मिला लो, 10 साल में हर गांव में सिर्फ 1-2 अड्डे बनाए, उन्हीं से वास्ता रखा, उन्हीं के घर में नौकरी, उन्हीं के घर में खाना, उन्हीं के घर में आना जाना। आम आदमी, किसान के बच्चे, ये हमारे दलित भाई केवल और केवल वोट लेके गया, उससे कुछ ज्यादा नहीं किया। गांव में सिर्फ 1 या 2 परिवार, उन्हीं से फोन पर, हाँ भाई के तेरे गांव में वाल्मीकियों का, के तेरे गांव में दानकों का, के वाल्मीकियों का। उसी एक आदमी को ठेकेदार बनाया, उसी से सारे गांव की जानकारी, और वही आदमी कहते नेताजी मैं बैठा हूं, ले आऊंगा घेर के सारे गरीब बराबर ने, ऐसे बोलता है वो। क्यों भाई? एक गरीब आदमी जब वोटिंग मशीन का बटन दबाता है, 1 वोट निकलती है, और जब कोई दूसरा उसके बटन दबाने से 100 निकलती है क्या? जिसको उसने चुना है गांव में, जिसको उसने ठेकेदार बनाया है, उसके बटन दबाने से 100 निकलती है क्या? नहीं निकलती। इसलिए आप अपनी वोट के स्वयं जिम्मेवार हैं। ये पुरानी राजनीति, पुराने नेताओं के तौर तरीके, ये चीज समझनी है। और जो मैंने ये आवाज उठाई है कि नेताओं को छोड़ दो, अपने जो तुमने पैदा किए गरीब घर से जो निकल के आया नौजवान, उसको मौका दे के देखो। उनको कोई पीड़ा का नहीं पता। कोई हमारा ऐसी वर्ग का भाई, बैकवर्ड वर्ग के भाई बहुत सारे खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, एक हाथ उठा के बता दो 10 साल उसको मौका दिया, एक भी गरीब के बच्चे को नौकरी लगी हो, एक बैकवर्ड समाज के किसी बच्चे को लगी हो, या किसी भी किसान के बेटे को लगी हो, नौकरी लगी, या तो उसका जो अड्डा था वहां, और यहां जहां उसका मन चाहा वहां। नौकरी के लिए 2 तरीके, एक तरीका था या तो ये हमारे भोले वाले हमारे आओ दादा डीएसपी में जाके उस नेता के पैर दबाने पड़ते थे। पैर दबाया करते, मैं झूठ बोलूं, दबाने पड़ा करते, झूठ नहीं बोल रहा, दबाने पड़ते थे। डीएसपी में अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों से पैर दबवाता था, या फिर उसके ठेकेदार थे, भाई आपने नोटा की गठड़ी बांध दो, या तो पैर दबाना या नोटों में पैसे में नौकरी मिलती थी। लेकिन जब से पिछले 10 साल से नौकरी मिलती है, उस गरीब के बेटे को बेटी को जो आखिरी लाइन में खड़ा है, जिसके घर में रोटी का भी जुगाड़ नहीं है, उसके घर में सरकारी नौकरी जाती है, उसके घर में सरकारी नौकरी जाती है, उसके घर का दिया स्वयं जलता है। यदि किसी के बच्चे में काबिलियत है, पढ़ाई में होशियार है, उसके घर में नौकरी अपने आप मिलती है। इसलिए उस सरकार में और इस सरकार में क्या फर्क है, उस नेता में और आपके बेटे में क्या फर्क है। यदि आपको 1 तारीख को फैसला लेना है, एक तरफ तो आपके भाई का, आपके बेटे का फोटो मिलेगा, और दूसरी तरफ उसी नेता का फोटो मिलेगा जिसने भेदभाव किया है, जिसने आपका केवल वोट लेके गया, गरीब आदमी का पानी तक नहीं पिया आज तक। कोई हमारा दलित समाज का भाई बता दो, आज तक दलित के घर में या किसी बैकवर्ड के घर में पानी तक नहीं पिया। आपको 1 तारीख को फैसला लेना है। और एक बात, ये मेरे दादा ताऊ काका सारे बैठे, वो नेता आपके बीच में आता है, जब उसको यहां सवे गांव में भाषण देना हो तो उसका भाषण बिल्कुल अलग रहता है। आप सबको बेवकूफ बनाने का काम करता है, आपका दिमाग घुमाने का काम करता है।
मेरी बात ध्यान से सुन लेना। यहां पर आएगा, भाषण देगा चौधरी साहब। चौधरी साहब अपनी चौधर ले आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ। मेरा नेता यो, मेरा नेता यो बार बार नेता का नाम लेता है, चौधर के नाम पे आप लोगों को बेवकूफ बनाता है कि चौधर के दिखाकर नुके मेरी दुकान अटके जमा दो। नुके है मेरे को एक मौका और दे दो। फायदे चौधरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पूछ लेना कि भाई जिस नेता का तू बार बार नाम ले रहा है, मेरा नेता यो है, उस नेता के साथ तो तूने गद्दारी करी थी। जब पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में स्वयं वो नेता चुनाव लड़ने आया था, तो आपने उसकी गोभी खो दी, उसका नुकसान किया। जिस नेता के नाम पर, जिस चौधरी के नाम पर हमारे भोले भाले इन चाचा ताऊ और इन नौजवानों को बेवकूफ बना रहा है, उसी नेता को हराने का काम किसने किया? उसी नेता ने, जो आपके बीच में घूम रहा है। शहर में जाएगा तो ये चौधरी वाला भाषण बंद हो जाएगा। शहर में जाते ही भाषण देता है कि लाला जी, मंडी में बैठ के भाषण देता है, ये झूठ नहीं बोले, तसल्ली कर लियो। शहर में जाकर बोलता है लाला जी देख लियो कदे गुंडा का राज आ जाए। शहर में जाकर आपके बेटे को, आपके भाई को गुंडा बताता है, किसान के बेटे को गुंडा बताता है। क्यों भाई, मैंने किसान के घर में जन्म ले लिया तो मैं गुंडा? क्या आप सारे गुंडे हो या फिर आप सारे गुंडे हो? ये चुनावी भाषण नहीं है, जाके तसल्ली कर लो। जिसकी दुकान पे बैठे हैं मंडी पे, जाता ही कान में यह बात कहे, अगलाला जी देख लियो। अरे भाई, जिस आदमी ने, जिस नौजवान ने नीचे फुटपाथ से लेके छोटी दुकान, बड़ी दुकान, ढाबा, होटल, इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया हो, क्या व्यापारी गुंडा हो सकता है? एक छोटे से काम से लेके इतना बड़ा मन्नत ग्रुप खड़ा कर दिया हो, क्या वो गुंडा खड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए उसका असली जो चेहरा है वो अलग है, और जो यहां आकर कहीं चौधरी की बात करके हमारे इन बुजुर्गों को बेवकूफ बनाता है, वहां खतरे में जाकर दतौली बेगा में जाकर बोलता है अपने दम पे आया हूं, मुख्यमंत्री बनूंगा। वहां जाके मुख्यमंत्री बनाता है अपने आप को। वहां चौधरी बोल गया जाके उन तक है भाई, एक की बार मुख्यमंत्री की कुर्सी उड़े ना होगी, मैं मन में बढ़ाऊंगे मुख्यमंत्री। वहां जाके मुख्यमंत्री बन जाए पर जाके। इसलिए वो अलग अलग रंग लेके आया है। हमारे दलित भाई, हमारी बहनें बैठी हैं, आपके बीच में आएगा, एक कोने में लेके जाएगा और कान में खुशर खुशर करके नुकेगा, अब सारा तो प्लाट दूंगा बनते ही। बेवकूफ बनाता है। पूछो 10 साल से कित गए भाई, ये वोट लेने के हमारे कर रहा है। ये हमारे नौजवान साथी, हमारे ये काका ताऊ, इनने भी ले जाके कान में कब है। आजकल नया तरीका तो है यो, खोए बहादुर है, कोचे छोड़े गए कह पड़ रहा है, बिला दिए, बोला तेरी सरकारी नौकरी पक्की। सब तो नौकरी बांटता है, इन गरीब आदमियों ने प्लाट बांटता है केवल वोट के लिए, केवल वोट के लिए। ध्यान करना, आपको उससे पूछना है, उसको जवाब देना है कि भाई तेरे को 10 साल मौका दिया, 15 साल हमने देख लिए, अब की बार मौका अपने छोरे ने देंगे, अपने भाई ने, बेटे ने देंगे, जिसने बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई मंत्री एमएलए बने, जिसने सेवा करने का काम किया है, हम उसको देंगे। ये वो नेता है जो आप जैसे लोगों से पैसे इकट्ठे करके शाम को मुंह बोल के, सच बता रहा हूं मैं, आप जैसे सभी लोगों से, मैं तो चलो ये सम्मान में
मेरे लिए भी करते हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, जगह जगह पर जाकर पैसे लेकर चंदा इकट्ठा करके शाम को गिनती करता है।